اور کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کو مقبوضہ کشمیر حکومت نے ڈی پورٹ کر دیا۔ راہل گاندھی اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کو طیارے کے ذریعے نئی دہلی روانہ کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد متین حیدر صاحب سے۔ متین صاحب، بالآخر اپوزیشن لیڈر کو بھی کشمیر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا ہے بھارتی حکومت نے، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ حکومت تو کسی طرح تیار نہیں ہے کہ اصل صورتحال سے آگاہی ہو سکے پوری دنیا کو۔ جی بالکل، اور اس بھارتی اقدام کی خود بھارت کے اندر مذمت کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ کوئی اور لیڈر نہیں تھے بلکہ خود بھارت کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں اور لیڈ بائی راہل گاندھی، وہ جب سری نگر کے ایئرپورٹ پر پہنچے تو انہیں جو ہے شہر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، شہر کے لیے انہیں ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا، اور یہ اپنے دیگر رہنماؤں کے ساتھ راہل گاندھی مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کے لیے سری نگر پہنچے تھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ راہل گاندھی نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی حیثیت اور مرتبہ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی مخالفت کی تھی، اور اب وہ مقبوضہ وادی کا دورہ کرنا چاہ رہے تھے، حقائق جاننا چاہ رہے تھے، لیکن آج جو بھارتی حکومت نے اقدام کیا اپوزیشن رہنماؤں اور راہل گاندھی کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے سے جو روکا، اس سے ثابت ہو گیا کہ بھارتی مودی سرکار جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے حالات و واقعات پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے، نہ صرف میڈیا سے چھپانا چاہتی ہے بلکہ اپنی پولیٹیکل پارٹیز سے بھی چھپانا چاہتی ہے۔ راہل گاندھی اور تمام اپوزیشن رہنماؤں کو سی آئی پی لاؤنج میں پہنچایا گیا سخت سیکیورٹی اور کڑے پہرے میں، اور پھر وہاں سے انہیں دوبارہ نئی دلی کے لیے جو فلائٹ تھی اس میں واپس بھجوا دیا گیا۔ ہندوستان کے اندر اپوزیشن کی پارٹیز، اپوزیشن رہنماؤں اور سول سوسائٹی نے خود بھارتی حکومت کے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ عالمی سطح پہ بھی یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، اور اس اقدام کے خلاف بھارتی حکومت کے خلاف سخت رد عمل آ رہا ہے، اور یہ اقدام یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ بھارت میں فریڈم آف اسپیچ نہیں، فریڈم آف موومنٹ نہیں، نقل و حرکت کی آزادی نہیں، بات کرنے کی آزادی نہیں۔ میڈیا کے اوپر پہلے ہی قدغنیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ کشمیر کے بارے میں کچھ نہیں چھاپ سکتا، لکھ سکتا۔ وہاں پہ جو بھی ڈسپیچز اور مکتوبات نکل رہے ہیں وہ بین الاقوامی میڈیا چھاپ رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کے اندر سخت سینسرشپ ہے، اور انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر سرکار کی لائن کے علاوہ کچھ اور رپورٹ کیا گیا تو ان کے خلاف مروجہ قوانین کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ تو تمام محاذوں کے اوپر پولیٹیکل فریڈم، پولیٹیکل موومنٹ، میڈیا فریڈم، ان تمام چیزوں کے اوپر کشمیر کے حوالے سے سخت قدغنیں لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے مودی سرکار پوری دنیا میں بدنام ہو رہی ہے، اور اس کا گھناؤنا اور بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے، بھارت کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ تجزیہ کار جان اچکزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اچکزئی صاحب، یکے بعد دیگرے غلط اقدامات کر رہی ہے بھارت کی حکومت، کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے یہ ان کے لیے؟ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے لیے بالکل سیونگ کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ ان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ 27 تاریخ تک جب یو این جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم مودی اپنا خطاب کریں گے تو کسی بھی طریقے سے بھی کشمیر سے اٹھنے والی آواز کو یہ دبانا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ جو ظلم کا بازار انہوں نے گرم کیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ان کی تصویریں اور ان کی جو تفصیلات ہیں وہ باہر آ جائیں۔ تو آج جب راہل گاندھی کانگریس کے رہنما، جو اگر کہ ان کا بہت کمزور موقف رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، ماضی میں انہوں نے کبھی بھی یہاں پہ جو ملٹرائزیشن ہے، جس طریقے سے سپریشن ہے، جو عوام کے حقوق کو زبردستی دبانے کے لیے یہاں پہ جو فوجیوں کی موجودگی ہے، کبھی بھی انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی، لیکن ایک کمزور موقف کے ساتھ آج وہ صرف وزٹ کرنا چاہتے تھے۔ یقیناً ایک آفیشیل وزٹ تھا، ایک ہائیلی کیروگراف وزٹ تھا، جس میں ان کو پروٹوکول کے ساتھ کئی سلیکٹیو علاقوں میں لے جانے کا پروگرام تھا، لیکن اگر یہ بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے مودی سرکار کے لیے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب دنیا کے لیے یہ کوئی معمہ نہیں ہے کہ مودی صاحب یہاں پہ کیا چھپانا چاہتے ہیں، اور ہندوستان جو ہے کون سا مکروہ چہرہ ہے جو دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب کشمیر کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں وہ ہمیں ٹرکل ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یو این باڈی کا اجلاس، ان کی تشویش، سوسائڈ واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، دوسرے جو انسانی حقوق کے علمبردار تنظیمیں ہیں، وہ سب ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے رپورٹیں بھی بھیج رہے ہیں اور دنیا کی ضمیر جھنجھوڑنے
की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक फाशिस्ट हुकूमत है और इसीलिए जो फ्रीडम हिंदुस्तान ने महदूद भी दिया था कश्मीरियों को, वो भी अब वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जेनोसाइडल राह पे निकले हैं और इनका एक ये राह है कि आलमी दुनिया ये रिकग्नाइज करें कि अब एक और हिटलर जो इस खिते में उभरने वाला है, उनका रास्ता अगर आज नहीं रोका गया तो फिर हम जो है एक ऐसी खतरनाक सूरत हाल का सामना करेंगे जो खुदा न खास्ता सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने नहीं देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जान हमारे साथ ही रहिएगा। मतीन हैदर साहब की तरफ चलेंगे एक मतलब फिर। मतीन साहब, पाकिस्तान को एक और मौका हाथ आ गया है भारत को चोट लगाने का, क्या करना चाहिए हमारी वजारत खारजा को? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी वजारत खारजा जो है वो पहले ही बहुत मुतहर्रिक है और जिस तरह की पहले रिपोर्ट हो चुका है, अब सफारती जरियों के जरिए ये आज तय किया गया है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोन पर रब्ता करेंगे। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जो पाकिस्तान की तरफ से डिप्लोमेटिक इक़दाम उठाए गए, कश्मीर को आलमी सतह पर जिस तरह उजागर किया गया, उसमें पास में भी 2 हफ्ते पहले भी सबसे जो मजबूत तरीन बयान आया था वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का था, जिसमें भारत को वार्न किया गया था कि वो मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने से बाज रहे। आज जब राब्ता होगा वजीर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से, तो वो उन्हें इस तमाम तर सूरत हाल पर एतमाद में रहेंगे और इस सूरत हाल पर एतमाद में रहने के साथ साथ उन्हें मुकम्मल तौर पर ब्रीफ करेंगे कि किस तरह भारतीय सरकार मकबूजा कश्मीर के हवाले, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब हो रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल की पामाली कर रही है, उसके तकद्दुस को पामाल कर रही है, सिविल आबादी को निशाना बना रही है। तो हमें अपनी खारजा पॉलिसी और ख़ास तौर पर सफारती जो इनिशिएटिव्स हैं उनको मज़ीद मौसर बनाना होगा और आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राब्ता इसी सफारती एक्टिविटीज का हिस्सा है। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बैनुल-अक़वामी राब्ते भी किए जाएंगे। मतीन साहब, G7 कॉन्फ्रेंस का भी आगाज होने वाला है और इस हवाले से भी इत्तलात हैं कि वहाँ भी कश्मीर का मसला उठाया जाएगा। क्या आपको ये ऊँट किसी करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है अब आने वाले वक्तों में? जी बिल्कुल, G7 एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट फोरम है और उसमें सफारती ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि G7 के इस सरबराही इजलास में मसले कश्मीर के ऊपर यकीनी तौर पर बात की जाएगी और इसमें जो शरीक ममालिक हैं उनकी तरफ से एक्सपेक्टेड है कि कोई ना कोई मंदूब या कोई सरबराह हुकूमत इसका यकीनी तौर पर जिक्र करेगा। अगर G7 के सरबराही इजलास में मसले कश्मीर का जिक्र हुआ तो ये भारत के ऊपर एक और बैनुल-अक़वामी सतह पर एक और अहम सफारती दबाव होगा, भारत की सुबकी होगी एक ऐसे वक्त में जब मोदी सरकार अपना घनावना चेहरा और अपना काला चेहरा सफेद करने के लिए यूरोप के दौरे के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। तो G7 में मसले कश्मीर की अगर बात हुई, एक लफ्ज या एक जुमला भी आ गया इन मुजारिम के खिलाफ, तो ये यकीनी तौर पर मोदी सरकार की सुबकी होगी और ये इस बात का नतीजा है कि मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर और आलमी सतह पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने मसले कश्मीर को उजागर किया, आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर मामला आ रहा है, इन मुजारिम के खिलाफ आवाज उठ रही है और जो खास तौर पर आज जो भारतीय हुकूमत ने इंतहाई घिनौना इक़दाम किया कि अपने ही अपोजिशन रहनुमाओं को मकबूज आबादी का दौरा करने से रोका गया, इसके ऊपर भी आलमी सतह पे कंडेमनेशन की तवक्को है। अच्छा मतीन साहब, ये राहुल गांधी को जो आज वापस किया गया है और ये बड़ा एक मूव था कांग्रेस की जानिब से, कांग्रेस ज़ाहिर एक बड़ी जमात है और राहुल गांधी कांग्रेस के अपोजिशन जमात के सरबराह हैं, अब उन्हें जो वापस किया गया है इसके बाद भारत के अंदरूनी मामलात में जो सियासी सूरत हाल है उसमें भी क्या बहुत ज़्यादा भूचाल आने की सूरत हाल पैदा हो सकती है? जी बिल्कुल, इसमें तूफान आएगा, भूचाल आएगा, चूँकि जब ये पॉलिटिशियंस वापस दिल्ली पहुंचेंगे तो उन्हें एक्सपेक्टेड है कि वहां पे भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करें और इसके साथ साथ जब लोकसभा का इजलास होगा तो इस मामले को वहां पे भी उठाया जाएगा कि क्यों कि भारतीय सरकार ने अपने ही मुल्क के सरकर्दा सियासतदानों को, अपोजिशन के रहनुमाओं को और सबसे बड़ी जमात के रहनुमा यानी कांग्रेस आई पार्टी के रहनुमा को श्रीनगर का दौरा करने से क्यों रोका, इसके ऊपर यकीनी तौर पर भारतीय सियासत में, भारतीय पार्लियामेंट में बहुत शोर शराबा उठेगा। भारतीय सियासत में, भारतीय पार्लियामेंट में बहुत शोर शराबा होगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार मोहम्मद मेहदी साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया मेहदी साहब। भारत सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई है, अपने ही मुल्क की सियासी जमात के मरकजी रहनुमा को श्रीनगर से उन्होंने बाहर निकाल दिया है, क्या कहेंगे आप?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इससे एक बात तो साबित हो गई कि श्रीनगर के अंदर जो है वो ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो किसी को दिखाई जा सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी साहब वापस जाकर इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं और भारत की आवाम खास तौर पे इसको किस नज़र से देखती है कि उनके वो नेता जिन्होंने आधे से ज़्यादा वक्त जो है हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, जिस पार्टी ने, उस पार्टी के जो लीडर हैं उसको अगर वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा, तो इसका मतलब है कि श्रीनगर और कश्मीर की जो सूरत हाल है वो इस काबिल नहीं बची है कि वहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स जा सके जो आपकी सोच से इख्तलाफ रखता हो। तो ये एक बहुत सीरियस बात है और पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस मसले को फौरी तौर पे जो है वो इंटरनेशनली भी उठाया जाए कि देखिए वहाँ का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसको ये मौका नहीं दिया जा रहा कि वो श्रीनगर में जा सके, तो फिर किसी दूसरे आदमी को या जो श्रीनगर के अंदर लोग मौजूद है उनकी क्या हालत होगी। तो इसका एक तो भारत की आवाम को देखना होगा कि वो अब इस पर क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अब ये उनका मसला बन गया है। ये सिर्फ एक मसला जो है कश्मीर का नहीं है, ये पूरे अब भारत का मसला है और पूरे भारत के अंदर एक बेचैनी अगर फैलेगी और ये सूरत हाल फैलेगी तो भारत की इकोनॉमी, भारत की हर चीज जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। इसलिए अब हिंदुस्तान के अवाम को भी ये देखना पड़ेगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और दुनिया को भी देखना पड़ेगा कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन एक जगह नहीं जा सकता और एक ऐसा शख्स उसके साथ गया था जो वहाँ का वजीर आला रह चुका है श्रीनगर का और श्रीनगर से जीता हुआ आदमी है बकौल उनके, अगर वो नहीं वहाँ जा सकते तो फिर कौन जा सकता है? कोई भी नहीं जा सकता वहाँ। अच्छा मेहदी साहब, क्या किया जाए कि पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वो सियासी और सफारती दबाव ही डालती रहे लेकिन फौजी मामले की तरफ ना जाए, क्योंकि इससे तो पूरा खित्ता बहुत मुतासर हो जाएगा। देखिए, बात असल में ये है कि फौजी तो मामला जो है अगर वो गया तो वो फिर किसी के हक बस में नहीं रहेगा, और अगर भारत ये समझता है कि वो शायद कोई महदूद जंग करेगा तो ये पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अहमियत इसी बात की है कि पाकिस्तान इस मसले को इंटरनेशनली जितना हाईलाइट कर सकता है वो करे, और बल्कि जो राहुल गांधी साहब के साथ हुआ है और अब जो राहुल गांधी वापस जाकर जो कुछ इस पर कहेंगे, इसको बाकायदा एक पैकेज की शक्ल के अंदर बनाकर इसको पूरी दुनिया के सिफारत खानों के अंदर जो इस्लामाबाद में मौजूद है उनको भी भिजवाया जाए और इसकी बुनियाद पर इंटरनेशनली भी बात की जाए। और जिस तरह कहा जा रहा है कि तहमीना जंजुआ साहिबा जो है वो जिनेवा जा रही हैं, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सब कुछ बताने, तो वहाँ पर एक मुख्तसर सी ऐसी फिल्म बनाई जाए कि वहाँ क्या कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है और खुद हिंदुस्तान के लोग जो उस बारे में कह रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं या जो सियासी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर एक फिल्म बनाकर पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी है उसके अंदर दिखाई जाए कि हो क्या रहा है वहाँ और हिंदुस्तानी खुद क्या कह रहे हैं उस सारी सूरत हाल पे। तो इसको जितना ज़्यादा फोकस किया जा सकता है वो किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर चीन के वजीर खारजा भी पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, तो उनको भी ये बताया जाए। और उसके बाद क्योंकि फिर बाकायदा यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का इजलास भी सितंबर में शुरू होना है, तो इससे पहले पहले जितनी तेज़ी दिखाई जा सकती है वो तेज़ी दिखाई जाए और सिर्फ दफ्तर खारजा को इन्वॉल्व ना किया जाए, बल्कि जो हमारे पाकिस्तानी वहाँ पर मुतारिक पाकिस्तानी है मुख्तलिफ दुनिया के दारुल हुकूमतों के अंदर, या ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं लेकिन उनकी शनासाई है वहाँ पर, उनके राब्ते हैं वहाँ पर, इन सब का एक बाकायदा एक ग्रुप की शक्ल होनी चाहिए और इस वक्त इसको ही अपनी जंग समझना चाहिए। यही हमारी जंग होगी। एक बॉर्डर के ऊपर जंग होती है, एक जंग दूसरी होती है और ये जंग शुरू हो चुकी है। जंग हमारी शुरू हो चुकी है। मोहम्मद मेहदी साहब हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें डायरेक्टर न्यूज़ एंड प्रोग्रामिंग जी न्यूज़ नदीम रजा साहब ने ज्वाइन किया है। नदीम साहब, एक और बड़ी गलती कर दी है भारतीय हुकूमत ने। राहुल गांधी को उन्होंने कश्मीर में दाखिल होने से मना कर दिया, उन्हें डिपोर्ट कर दिया है। किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप मामले को? देखें, अगर राहुल गांधी को अंदर जाने की श्रीनगर में इजाजत दे देती मोदी सरकार, तो जो उनका मिशन था कि जो अलमिया इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है महफूजा वादी में, वो दुनिया के सामने आ जाता। वो हद्दुल इम्कान की कोशिश है कि अंदर जो कुछ उस दुनिया की सबसे बड़ी जेल में जहाँ पे लोगों को कैद किया हुआ है उन पे जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, जो घरों पे धावे रातों को दिन में दिए जा रहे हैं, माओ के सामने से उनके लफ्ते जिगर को उठा के ले जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही, खाने पीने की अशिया वो नापैद हो चुकी हैं।
تو تعفن اٹھ رہا ہے علاقے میں، وہاں جو نظر آتے ہیں صرف بھارتی فوج ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر دنیا کے سامنے آیا ہوتی، اس لیے گو کہ ان کو بھی بھارتی حکومت کو پتا تھا کہ یہ راہل گاندھی اکیلے نہیں جا رہے تھے، 12 رکنی کانگریس کا وفد تھا اور ان کے ساتھ میڈیا کی ٹیم بھی لے کے جا رہے تھے کہ مودی کو ایسے موقع پر عیاں کیا جاتا دنیا کے سامنے جب وہ پیرس سے UAE پہنچے ہیں جہاں وہ بڑے معاہدے کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر یہ اندر چلے جاتے، ایسی صورتحال میں اگر یہ اندر چلے جاتے تو پوری دنیا کے سامنے بھارت کے مکروہ عزائم اور غلط چہرہ سامنے آ جاتا۔ بہت بہت شکریہ متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ تھے، محمد مہدی اور جان اچکزئی صاحب نے جوائن کیا، جبکہ ڈائریکٹر نیوز اینڈ پروگرامنگ ندیم رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔